Today, our topic is retina. What is retina? Retina is the innermost layer of the eyeball, delicate membrane, innermost layer. It consists of two layers: retinal pigmented epithelium and neurosensory retina. Retinal pigmented epithelium, neurosensory retina, present below the choroid. It is the layer is a choroid vascular layer of the eyeball choroid and up till, and this is a ciliary body, and this is iris. This iris, ciliary body and choroid form the uveal tract of the eyeball, and the outermost layer is a sclera, and the retinal pigmented epithelium and neurosensory retina. Neurosensory retina is further divided into nine layers. So retina is further divided into 10 layers. One is retinal pigmented epithelium, and the nine layers are न्यूरोसेंसरी रेटना, मतलब 9 जो लेयर्स होती हैं इसकी वो न्यूरोसेंसरी रेटना की होती हैं, और जो 1 लेयर्स होती है वो रेटनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की होती है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करें, अब ये रेटनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी रेटना का, तो हमें ये किस तरह ये लेयर्स बनती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इंटीरियरली इंटीरियरली रेटना टर्मिनेट हो जाता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है, उसको ओरा सेरिटा कहते हैं। ओरा सेरिटा, ये दिस इज़ अ स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, दिस इज़ द ओरा सेरिटा. Sclerocorneal junction, here is the ora serrata present, and here is the equator present. So this is present between the sclerocorneal junction and equator. Eyeball filled होती है with jelly like structure. Here is the vitreous body is present. So vitreous body is present. Here cortical vitreous is present here posteriorly. So we discuss the 9 layers of the neurosensory retina one by one. हम न्यूरोसेंसरी रेटिना को डिस्कस करेंगे कि इसकी 9 लेयर्स हैं, तो वो 9 लेयर्स किस तरह बनी है। Here is the 9 layers of 9 layers of retina. Is the sclera and the choroid. The retinal pigmented epithelium. Retinal pigmented epithelium consists of cells which contain melanocytes. The main function of the melanocytes, melanin, is to observe the extra light when light enter into the retina. So excessive light is observed by द रेटिना, क्योंकि इसमें रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में मेलानिन प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस होती है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, rods and cones. Rods are in rod shape. Rod shape, and cones are in cone shape. So we डिस्क्राइब करते हैं कि रॉड्स एंड कोन्स की शेप किस तरह होती है। हेयर इज़ द रॉड. Rods consist of outer segment, inner segment, and nucleus and spicules. And this cones consist of inner, outer, and nucleus, and also pedicles, which synapse with the bipolar cells. There is the present यहाँ पे ये देखें, ये प्रेजेंट होते हैं स्पेक्यूल्स, जो कि ये प्रेजेंट हैं बायपोलर सेल्स। बायपोलर सेल्स इसके साथ साइनेप्स करते हैं। ये देखें, बायपोलर्स जो होते हैं, जो रॉड्स होते हैं, एक बायपोलर्स मल्टीपल रॉड के साथ साइनेप्स कर सकता है, लेकिन जो एक बायपोलर सेल्स होता है एक ही कोन्स के साथ साइनेप्सिस कर सकता है, साइनेप्स करता है। ये इसका फीचर है कि ये जो बायपोलर सेल्स होते हैं, बायपोलर सेल इसके साथ मल्टीपल रॉड के साथ साइनेप्स होते हैं। उसके बाद है बायपोलर सेल्स के बाद यहाँ पे ये जो लेयर्स होती है, ये गैंग्लियोनिक लेयर्स, ये बायपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स करती हैं।
और ये जो जा रहे होते हैं ये हैं फाइबर्स, नर्व फाइबर लेयर्स. Nerve fiber layers. This is so why it is called nerve fiber layers, because it is arise from ganglionic cells. So it form the nerve fiber. Here is the Muller cells present. Oh, what is Muller cells? Muller cells present, and the main function of the Muller cells is to hold the photoreceptor. So it form a membrane. It's form of membrane which is called internal external limiting membrane. Here is the outer layer फ्रॉम ये कॉर्निया रेटिना की आउटर लेयर है, क्योंकि हम जब पोस्टीरियरली टू इंटीरियर जाते हैं तो ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर होता है. जो आउटर लेयर है तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. तो हम इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं कि सबसे जो पहले लेयर्स होती है ये लेयर्स कौन सी होती है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम. और ये जो लेयर्स है ये न्यूरोसेंसरी रेटिना, ये रेटिनल पिगमेंटेड न्यूरोसेंसरी रेटिना में फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन्स एंड देन एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. This layer form the external limiting membrane, which is formed by the Muller cells, and here is the nucleus. This form the outer nuclear layer, and here is the synapses which form the plexiform layer. Here is the horizontal amacrine cells also present, which synapses with the photoreceptor rods and cones. This form the outer plexiform is the nucleus. This is the inner nucleus layer, and this layer form the inner plexiform layer. This is a ganglionic cell layer. दिस इज़ अ नर्व फाइबर लेयर. और जो ये लेयर्स होती है ये मुलर सेल्स बनाते हैं. मुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मुलर सेल प्रेजेंट होते हैं जो ये एक मेम्ब्रेन बना देते हैं. इसको इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ इंटीरियरली अटैच विद द कॉर्टिकल विट्रिक्स पार्ट ऑफ द कॉर्टिकल विट्रिक्स के साथ अटैच होता है, जो कि विट्रिक्स का पोस्टीरियर पार्ट है. ये कौन सी होती है? नर्व फाइबर लेयर्स. तो टोटल कितनी लेयर्स हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये लेयर और 9 ये लेयर मिल के क्या बना रही होती हैं? टोटल रेटिना की 10 लेयर्स बना रही होती हैं. जब लाइट यहाँ से आती है रेटिना पे पड़ती है तो एक्सेसिव लाइट ऑब्जर्व हो जाती है कहाँ पे? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में. और जो लाइट होती है यहाँ से लाइट ने क्या होना होता है? रिफ्लेक्ट होना होता है. यहाँ से लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, जो यहाँ से लाइट क्या करती है, फिर यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामाइन्स ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे सिनेप्सिस होता है. तो यहाँ से स्टिमुलस ब्रेन की तरफ जाते हैं, नर्व फाइबर्स लेके जाते हैं गैंग्लियंस के. ये जो बाइपोलर सेल्स होते हैं ये ग्रेडिंग पोटेंशियल होते हैं कि कोई स्टिमुलस आई तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं. और ये क्या होते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल. इन्होंने क्या करना होता है कि स्टिमुलस आया तो उसमें एक्शन किया कि हमने इसको आउटपुट क्या देना है, हमने इसका एक्शन स्टार्ट करना है. तो यहाँ से रेडिएंट फ्लो ऑफ करंट जाता है. रेडिएंट फ्लो ऑफ करंट कहें क्योंकि यहाँ पे ट्रांसडक्शन होता है. ट्रांसडक्शन मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं और चेंज हो जाती हैं इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल. सो
इलेक्ट्रोकेमिकल में जाके यहाँ से नर्व फाइबर लेयर से ऑप्टिक डिस्क से फिर ऑप्टिक क्याज्मा ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्याज्मा up till occipital lobe of the eye of brain. So rods and cones contain special type of protein which rod contain rhodopsin and cones rhodopsin. Rod is responsible for night vision and the cone is responsible for day vision. Cones is present in highly concentrated हाई कंसनट्रेशन में ये फोविया पे प्रेजेंट होते हैं और रॉड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पेरिफ्री पे होते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जब भी लाइट आती है तो ये डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए ये फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन्स कौन सा है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और बायपोलर सेल्स फोटो रिसेप्टर और बायपोलर सेल्स जो होते हैं ये यहाँ से जा रहे होते हैं सेकेंड आर्डर न्यूरॉन गैंग्लियनिक सेल्स में जाते हैं. गैंग्लियनिक सेल से फिर जाते हैं ऑप्टिक नर्व इज़ द थर्ड आर्डर न्यूरॉन. ये जो होते हैं ये एफरेंट पाथवे लेके जा रहा होता है लाइट का अप टू द ब्रेन. एफरेंट मीन जो उसका स्टिमुलस मिली तो उसके लिए जो पाथवे ब्रेन में जाके जिसने स्टिमुलेट करना होता है वो ये पाथवे फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर और थर्ड आर्डर न्यूरॉन्स के ज़रिए हम ब्रेन तक जाते हैं. ये जो फाइबर्स होते हैं गैंग्लियन फाइबर्स ये टर्मिनेट हो जाते हैं. गैंग्लियनिक फाइबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं कहाँ पे? ऑप्टिक डिस्क पे. गैंग्लियनिक फाइबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये जो नर्व फाइबर्स लेयर्स हैं ये टर्मिनेट हो जाती हैं. गैंग्लियनिक सेल्स के जो फाइबर्स होते हैं गैंग्लियन मिल के ही क्या बना रहे होते हैं? ऑप्टिक डिस्क बनाते हो. यहाँ से ये गैंग्लियन सेल्स जाते हैं और जो ये गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिनेटेड होते हैं. और यही गैंग्लियन ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं. ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियनिक सेल्स नर्व फाइबर लेयर होते हैं. यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते. रॉड्स एंड कोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन विजन्स. कोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन विजन. रॉड्स एंड कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते. तो यहाँ पे सिर्फ गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से यहाँ पे जब ये जगह होती है यहाँ पे विजुअल परसेप्शन विजन नहीं होती. यहाँ इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं. ये यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क बना देते हैं और पीछे ये पोस्टीरियरली ये ऑप्टिक नर्व जा रही होती है जो कि ब्रेन में से गुजरते ऑप्टिक क्याज्मा ऑप्टिक ट्रैक बनाती है. ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये अप टू ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब तक चला जाता है. inner retina is supplied by choriocapillaries. Is a present choriocapillary choroid from here is a tight junction is present which prevent the excessive fluid enter into the retina. यहाँ पे zonula occludens यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. टाइट जंक्शन होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि एक्सेसिव फ्लूइड इसमें एंटर ना हो और इसको डैमेज कर दे एडिमा काज कर दे. तो यहाँ पे ये टाइट जंक्शन रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं. जो इनर लेयर्स इनर्स होते हैं 5 लेयर्स होती हैं उसको सप्लाई किया जाता है कोरियोकैपिलरीज. और जो आउटर 5 लेयर्स होती हैं आउटर 5 लेयर्स जो होती हैं वो सप्लाई किए जाते हैं कोरियोकैपिलरीज. और जो इनर लेयर सप्लाइड की जाती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन.